أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان المبارک کی مبارک راتوں سے اور دن میں بھی روزہ رکھ رہے ہوں گے اور مبارک راتوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دا فوربیڈن گیم، اور اس سلسلے میں آپ کے ساتھ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 کو تھوڑا سا ڈسکس کروں گی۔ تو پہلے ہم آیت دیکھتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے کیا کیا ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنو، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، کہ ضرور اللہ تعالی جو ہے تمہارا امتحان لے گا یا تمہیں آزمائے گا۔ کس چیز سے؟ کہ شکار میں سے یا شکار میں سے کسی چیز سے، ٹھیک ہے۔ اور تنالوہ ایدیکم، کہ پہنچ سکیں گے تمہارے ہاتھ جن تک، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، میں یخافہ، کہ کون تم میں سے ڈرتا ہے، بالغیبی، بغیر دیکھے، اس سے یعنی اللہ سے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو پھر جو کوئی حد سے بڑھے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت جو ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ اللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور تمہیں ٹیسٹ کرے گا۔ یہ جو لفظ ہے لَيَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا مطلب ہے کہ لازمی طور کے اوپر یہ ہو نہیں سکتا کہ تم لوگوں کا ٹیسٹ نہ لیا جائے، اور کم کا مطلب ہے کہ تم میں سے سب کا، یہ نہیں کہ کوئی سلیکشن ہوگی، کچھ چند لوگ ہوں گے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک، ہر ایک، سب، اور اس کا مطلب ہے کہ لازمی طور کے اوپر۔ اور کیا ہے کہ یعنی کہ اس گیم میں، اس چیز میں سے ٹیسٹ لیا جائے گا، یعنی پوری چیز کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، اس میں سے کچھ، اس میں سے کچھ بھی، شعیم کا مطلب ہے کچھ، اس میں سے ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ لے گا کون؟ تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جو حد سے بڑھے گا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے، یہ ایسا ٹیسٹ ہے کہ یہ پوری چیز کا نہیں ہے، اس میں سے کچھ چیز کا ہے جو کہ مینیجیبل بھی ہوگی، جس کو تم آرام سے پاس بھی کر لو گے، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر جو دو چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے کہ وہاں ان تک تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں اور تمہارے نیزے، یعنی ہاتھ کن تک پہنچتے ہیں؟ ان جانوروں تک جو کہ چھوٹے ہیں، جن کو تم پکڑ سکتے ہو، اور نیزے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ جن تک جو بڑے جانور ہیں، جو کہ ہاتھ سے قابو نہیں آ سکتے، جو ذرا دور بھی ہیں، تو وہاں پر تم نیزے یا تیر یا اس طرح کی جس طرح آج کل بلیٹس اور یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہو۔ تو یہاں پر
इस चीज का जिक्र हुआ है। अब ये चीज जो है हमारे लिए, इस चीज में अब लर्निंग के क्या लेसन्स हैं, हम उसको देखते हैं कि ये जो आयत जो उतरी है, मुफस्सिरीन इसके बारे में ये कहते हैं कि जिस साल सुलह हुदैबिया हुआ था उस साल सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में उम्रा करने की गर्ज से मक्का जा रहे थे। और उस टाइम का सफर आज के सफर की तरह नहीं था, पैदल सफर करना होता था। और वो लोग, और आपको पता है कि वहाँ पर गर्मी भी कितनी शिद्दत की होती है क्योंकि सहराई इलाका है। और वहाँ पर जब वो लोग निकले तो एहराम की हालत में थे। और एहराम की हालत में जब हम होते हैं तो हम कुछ पाबंदियों में होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कि हम बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। और मर्द जो है वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, उनका खास लिबास होता है जो दो चादरों पर मुश्तमिल होता है, वो पहनते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हालत एहराम में होती हैं। तो वो जो सहाबा जो थे वो उस वक्त एहराम की हालत में थे, और वो उस वक्त सफ़र भी कर रहे थे। और सफ़र में इंसान को थकावट भी होती है, उसको भूख भी लगती है। तो वहाँ पे रास्ते में जब वो जा रहे थे तो नुआइम एक जो जगह है जब वहाँ पर स्टे किया, तो वहाँ पर शिकार के काफ़ी जानवर जो थे वो वहाँ पर फिर रहे थे। और उसमें से सब सहाबा जो थे वो हालत एहराम में थे तो वो शिकार नहीं कर सकते थे। और एक जगह पर यह भी आता है कि जब नुआइम में जाके उन्होंने अपने खैमे लगाए तो यहाँ तक कि उनके खैमों के अंदर भी वो जानवर आ रहे थे। यानी कि इतनी, ये जो आजमाइश थी ये थी कि बिल्कुल उनके पास, उनके हाथों में वो आ रहे हैं, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं सकते थे, उनको उसका शिकार नहीं कर सकते थे, हालांकि वो इतना इजी टारगेट जो था वो आ चुका हुआ था। तो इसी तरह ही जो है सहाबा जो हैं वो उनका जो है ये इम्तिहान लिया गया। हम आज के ज़माने में जब सफ़र करते हैं तो हमें रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, हमारे लिए रास्ते भी आसान हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं होता था। उस दौर में भूख की शिद्दत भी थी, प्यास की शिद्दत भी थी। और शिकार का जानवर जो है, और वो लोग सबसे बड़ी बात है कि वो लोग शिकार का गोश्त खाने के आदी थे, वो शिकार करते थे। तो उनको, उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस चीज से बाज रखा। अब यहाँ पर मैं आपके साथ कंपैरिजन करूंगी एक और वाक्य का जो कि हमें मिलता है एक और उम्मत के बारे में, जो कि साबिका उम्मत थी। और अल्लाह ताला ने उनको भी चुना था, और वो थी बनी इसराइल। और उनका टेस्ट हुआ था असहाबे सब्त का वाक्य आप लोगों ने सुना है नहीं, हफ्ते वाले दिन में से। और उनके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने शिकार नहीं करना। और वो मछली का शिकार करते थे, दरिया के पास या समंदर के पास रहते थे, और वो मछली का शिकार करते थे, और वो इंतहाई शौकीन थे मछली के। तो हफ्ते वाले दिन उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि इस दिन आप लोगों ने शिकार नहीं करना, और ये दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए है। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक गेम प्लान की। उन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ हीला किया, और उन्होंने जो है उसमें घड़े खोद के और उसमें जाल लगा के, जिस तरह भी उन्होंने जो कोई भी प्लान किया था कि होता ये था कि सैटरडे वाले दिन मछलियां भी बहुत ज्यादा आ जाती थी। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी। और आप भी देखें कि आप, हमारी जिंदगी में भी बाज़ दफा इस तरह ही होता है ना, कोई चीज़ अगर हमें, हम ममनू हो जाती है, या हम खा नहीं सकते, या हम कुछ वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, तो वो हमारे सामने आती भी ज्यादा है। तो वो भी इसी तरह ही हुआ। और वो लोग सैटरडे वाले दिन जाते तो नहीं थे, लेकिन फ्राइडे को सारा प्लान करके वहां पर आ जाते थे। और वो जितनी भी मछलियां होती थी वो फंस जाती थी उस जालों में जिन्होंने वो खोदे होते थे, और संडे को वो जाके ले लेते थे। और
समझते ये थे कि शायद अल्लाह ताला नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो जानता है ना। तो बलिहाजा उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और जिस चीज से अल्लाह ताला ने उनको मना किया था, उस शिकार से सिर्फ एक दिन के लिए उन्होंने उस चीज से अपने आप को नहीं रोका। लेकिन सहाबा सहाबा का हम जब देखते हैं तो सहाबा के ऊपर जो एहराम की ये पाबंदी थी, और एहराम की पाबंदी आपको पता है कि जब तक जिस तरह उम्रा है, अगर उम्रा जब तक परफॉर्म ना कर लिया जाए, उसको अदा ना कर लिया जाए पूरा, उसके रुकन जो आखिरी रुकन यानी कि उसके अपने बाल ना काट लिए जाए, तो उससे पहले हालत एहराम की पाबंदियां खत्म नहीं होती। इसी तरह हज के भी जो दिन हैं जिसमें जब तक वो पूरा ना कर लिया जाए, तो वो पाबंदी खत्म नहीं होती। और अब ये डिपेंड करता है कि अगर वो मक्का से चले हैं एहराम की हालत में, इसका मतलब ये पैदल सफ़र कर रहे हैं, तो वो जब तक मदीना से सॉरी चले हैं और जब तक मक्का पहुंच नहीं जाते और वहां पर जाकर उम्र अदा नहीं कर लेते, तब तक वो पाबंदी खत्म नहीं होगी। अब वो 10 दिन भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो लिहाजा जितने दिन भी वो उस हालत में हैं, उस उतने दिन वो उस पाबंदी में रहेंगे। तो सहाबा ने इस चीज की मिसाल कायम की, समीना व अताना, कि हमने सुन लिया और हमने मान लिया। अच्छा, अब हुआ क्या है कि यहाँ पर जो है एक वाकया हुआ उसी दौरान। एक सहाबी थे अबू कतादा, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस काफिले में शामिल थे जो लोग उम्रा करने के लिए जा रहे थे। मगर ये वो सहाबी थे कि जिन्होंने उस वक्त एहराम नहीं पहना था, अभी उन्होंने एहराम की हालत में नहीं निकले थे, उन्होंने नियत नहीं की थी। बाकी सारे सहाबा हालत एहराम में थे, लेकिन ये नहीं थे। अब हुआ क्या कि सहाबा जा रहे हैं, मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में जा रहे थे, तो एक जमात जो थी वो जा रही, तो उनके सामने एक जंगली गधा जो है वो आ गया। अ, अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पालतू गधा है वो हराम है। जंगली गधा जो है, जो कि कुछ लोगों के नज़दीक ज़ेबरे की तरह का होता है, और उसकी स्ट्राइप्स होती हैं पाँव पर, तो वो जो था वो जंगली गधा जो है वो हराम नहीं है, वो हलाल है। और वो आ गया। अब सहाबा जो थे, बाकी सहाबा जो थे वो हंसना शुरू हो गए। तो और अब कतादा कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हंस रहे हैं। यानी कि अब एक सारे लोग हंस रहे हैं और एक बंदा बैठा हुआ है यहाँ उस महफिल में और उसको समझ नहीं आ रही, तो उसको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है ना कि ये क्यों हंस रहे हैं। और वो हंस रहे थे, लेकिन वो उन्होंने ना कोई इशारा किया, ना उन्होंने कोई बात कही, ना उनको कोई उन्होंने डायरेक्शन दी कि तुम ये करो तुम वो करो, लेकिन सिर्फ हंस रहे थे। तो खैर कहते हैं कि दो तीन इसमें रिवायात आती हैं कि उन्होंने देखा उस जगह पर जहां पर वो लोग देख रहे थे। एक जगह आती है, एक जगह ये लिखा हुआ था कि उन्होंने वो अपने जूती की मुरम्मत कर रहे थे, और उस टाइम सहाबा हंसना शुरू हुए, तो उन्होंने देखा तो सामने एक जंगली गधा खड़ा हुआ था। और एक जगह पर ये आता है कि वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे, छोटी कोई पहाड़ी थी, तो वहां पर उन्होंने जब सहाबा हंसना शुरू हुए तो उन्होंने उस रुख पर देखा जहां पर वो सहाबा देख रहे थे, तो वहां पर उनको जंगली गधा नजर आया। अब जब जंगली गधा नजर आया, तो और जंगली गधा जो है वो कोई छोटा जानवर नहीं है, वो एक बड़ा जानवर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि घोड़े पे सवार थे, तो उन्होंने अपना जो घोड़ा जो था उसके पीछे दौड़ाया। और जब वो भागे हैं तो उनको दरमियान में जाके एहसास हुआ कि मेरा नेज़ा जो है ना वो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने पीछे से सहाबा को आवाज़ दी कि मुझे जल्दी से मुझे मेरा नेज़ा पकड़ाओ। तो सहाबा ने कहा नहीं, हम तो नहीं पकड़ाएंगे। तो वो क्या हुआ कि वो फटाफट फिर वापस आए, उन्होंने जल्दी से वो नेज़ा घोड़े से उतरे, नेज़ा पकड़ा और फिर दोबारा से गए, और फिर खैर उसको जाके उन्होंने हंट किया। हंट करने के बाद जब हंट कर लिया, तो उसके बाद ना उन्होंने सहाबा से कहा कि मेरे
साथ आओ, हेल्प करो, क्योंकि वो एक बड़ा जानवर है, उसको उठाना और उसको वो मैनेज करना, वो एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल काम है, मुशक्कत वाला काम है। तो उन्होंने सहाबा से हेल्प मांगी कि इसको उठाने में मेरी मदद करो। तो तमाम सहाबा ने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। और खैर उन्होंने खुद किया। उसके बाद जब उसको वो खाल उतारनी थी और जो भी उस सारा प्रोसीजर होता है वो जब करना था, तो उस टाइम भी उन्होंने सहाबा से मदद मांगी, सहाबा ने उस टाइम भी इनकार कर दिया। तो इनकार क्यों कर रहे थे? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ना, वो अल्लाह के हुक्म के लिए कर रहे थे। ये नहीं है कि वो उनकी मदद करना नहीं चाहते थे। वो वजह सिर्फ ये कि वो उस टाइम जिस कंडीशन में थे, उस कंडीशन की जो हुरूमात हैं उसमें से एक ये था कि वो शिकार कर नहीं सकते थे, लिहाजा वो किसी भी तरह से उनको असिस्ट नहीं कर रहे थे कि कहीं ना कहीं के कि हम कोई इनके कहीं कोई चीज ही पकड़ा दें, कोई कर दें, तो हमारा उसमें किसी तरह भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो वो भी सारा काम उन्होंने खुद किया, एक सिंगल आदमी ने। और फिर उसके बाद उनका उस जानवर का गोश्त तैयार करके तो पकाया। अब जब पका लिया तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब खा लो आके। तो अब हुआ ये कि उसमें से कुछ सहाबा ने खाया और कुछ ने कहा कि नहीं, हम जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे नहीं तब तक हम नहीं खाएंगे। और खैर मक्के से ज़्यादा दूर नहीं थे। जब वो मक्के पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई गई और ये बताया गया कि क्या ये गोश्त खाना जो है ये हमारे लिए जायज़ है, हलाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा "हाँ, बिल्कुल हलाल है"। और फिर उन्होंने ये पूछा अबू कतादा से कि क्या कुछ गोश्त बचा हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, बचा हुआ है। तो उसमें से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया। तो ये सारा वाकया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये सारा जो वाकया हुआ और इस वाकये के पीछे क्या हमें पता चल रहा है कि ये आजमाइश क्या थी, कि ताकि अल्लाह ताला ये देखे कि कौन उससे बगैर देखे डरता है। अच्छा, ये जो बगैर देखने देखे डरना जो है, इसका मतलब क्या है? ये जो आयत का ये हिस्सा ना, लियअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब, इसके दो मीनिंग्स है। ये जो फियर है ये वाला, यखाफुहु, फियर जो है, ये खौफ जो है कि उस डरने वाली जो बात हुई है, इसके दो मानी हैं। कि सबसे एक मानी तो ये है कि अल्लाह ताला क्योंकि हमें नजर नहीं आता, तो कौन है कि जो अल्लाह ताला को बगैर देखे डरता है? यानी कि हम अल्लाह ताला से डर रहे हैं लेकिन हम उसको देख नहीं रहे, हमें नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उससे डरते हैं। यानी कि जिस तरह अगर हमें कोई चीज, कोई हम कोई काम कर रहे हो और कोई हमें बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हो, तो हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, हमें पता होता है कि हमें कोई देख रहा है। लेकिन अल्लाह ताला हमें नजर नहीं आता। तो क्या हम कॉन्शियस हैं, होते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है? पहला मानी ये है। दूसरा मानी मानी क्या है? और पहले मानी में आपको अब सुनी होगी आपने, बड़ी मशहूर जो है हदीस जिब्रील भी है, कि जिसमें एहसान का जो लेवल है उसके अंदर ये बताया गया, उसकी डेफिनेशन में ये है कि कोई तुम काम इस तरह से करो या इबादत इस तरह से करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम नहीं देख रहे तो ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये एहसान का ये लेवल है। दूसरा मतलब इसका ये है कि जब तुम अपनी तन्हाई में हो, यानी कि तुम अकेले हो और तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा, लोगों में से कोई नहीं देख रहा, उस वक्त क्या तुम अल्लाह से डरते हो? यानी कि अपनी तन्हाई में क्या तुम डरते हो अल्लाह ताला से कि तुम कुछ ऐसा काम या ऐसा हरकत ना करो कि जो अल्लाह को नाराज करने वाली हो? तो ये दो मानी जो है ना, इसके लिए जाते हैं। इस फियर के दो मानी हैं। अब यहाँ पर जो है मैं एक चीज को यहाँ से आप इसके साथ रिलेट करना चाहूंगी कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस आयत से हमारे लिए कुछ खास पैगाम है, कुछ मैसेज है। वो कैसे?
इस आयत में बात हुई है एहराम की हालत में जो पाबंदियां, जो आजमाइश अल्लाह ताला ने उनकी की, और उसके पीछे इस आयत जब उतारी गई तो उसके पीछे जो वजह जो थी वो ये थी कि एहराम की हालत में जो चीजें उन पर हराम की गई थी, तो जो हराम की गई थी जो चीजें हालत एहराम में, वो हलाल चीजें ही थी ना। हराम चीजें जो ऑलरेडी हराम है वो तो बदरजा उला ही हराम है ना, वो तो है ही हराम। लेकिन जो हलाल चीजें हैं वो भी हराम हो गई। तो यहाँ पर आप ये देखें कि काबे की हुर्मत बहुत ज्यादा है। हम जब हरम की हुदूद में दाखिल होते हैं तो हरम के अलावा बाकी सारी दुनिया जो है वो हिल है। तो हरम की हदूद में जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो कुछ पाबंदियां जो होती हैं वो हमारे पे लागू हो जाती हैं। कुछ पाबंदियों के जुमरे में हम आ जाते हैं। वो अमन वाला शहर है, और कुछ काम हम वहाँ पर नहीं कर सकते। जब हम, और ख़ुसूसी तौर के ऊपर हम जब हालत एहराम में होते हैं तो कुछ और मज़ीद पाबंदियां भी हम पर लग जाती हैं। ये एक प्रैक्टिस है, एक नफ्सियाती और जज्बाती तौर के ऊपर एक प्रैक्टिस है। जब हम, खसूसी तौर के ऊपर वो लोग जो दूसरे मुल्कों से जाते हैं वहाँ पर, तो उनके ऊपर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है, और उनके एटीट्यूड में और उनकी सोच में और उनके जज्बात में इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं। काबे की हुर्मत सबसे ज़्यादा है, और अल्लाह ताला ने कुछ चीजों की हुर्मत काबे से भी ज्यादा बताई है। क्या आप में से कोई बता सकता है किस चीज की हुर्मत काबे से ज्यादा है? अगर आप, मैं टेक्स्ट लिख लिख के या आप में से कोई बोल के बताना चाहे, कोई जवाब देगा? जी, मोमिन की इज्जत। जी, मोमिन की इज्जत। एक हदीस के मुताबिक मुसलमान का माल, जान और इज्जत काबे की हुर्मत से भी ज्यादा है। यानी कि इतनी बड़ी चीज जो काबे की है, इज्जत और हुर्मत, के उसके अंदर हम जब उस जगह पर जाते हैं तो उसमें जाकर हलाल चीजों की भी कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। और लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमान की जान, माल और इज्जत को काबे की हुर्मत से भी ज्यादा करार दी है। और इसके लिए दूसरी अहम चीज क्या है, इसके लिए एहराम की जरूरत भी नहीं है। वो तो हम जब एहराम की हालत में होते हैं तो फिर हम पर मजीद पाबंदियां लग जाती है ना, कि शिकार नहीं करना, और बाल नहीं काटने, और नाखून नहीं काटने, और मियाँ बीवी का ताल्लुक नहीं कायम हो सकता। वो तो एक हालत एहराम में है। लेकिन मुसलमान की जान, माल और इज्जत के लिए एहराम की जरूरत नहीं है। वो हर वक्त ही उस हुर्मत के जुमरे में आता है, और ये हर वक्त है। अब आप इस पर गौर करें कि अगर इनकी हुर्मत इतनी ज्यादा है तो इसकी पामाली, इसकी हुर्मत की पामाली जब की जाती है तो क्या उसका गुनाह भी ज्यादा नहीं होगा? अगर उसकी हुर्मत इतनी बड़ी है तो उस हुर्मत का हम जब उसको हुर्मत को पामाल करते हैं तो क्या उसका गुनाह भी ज्यादा नहीं होगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे पामाल करते हैं। मसलन मुसलमान की जान, इसमें तो सिंपल चीज ये है कि जान, एक बेगुनाह को मार देना, वो तो जान जाया गई ना। यानी कि ठीक है उसकी मौत उस तरह लिखी हुई थी, बट थिंग इसके उस बेगुनाह को मारा गया। लेकिन इसके अलावा जान को और हम किस तरह से जाया करते हैं? डॉक्टर्स बाज दफा, या फार्मासिस्ट जो हैं, कोई गलत दवाइयाँ देकर, बाज लोग जो ये क्वैक्स होते हैं वो अपने पैसे कमाने के लिए गलत चीजें दे देते हैं। फिर गलत किस्म की खुराक खा के हम अपने ऊपर खुद भी जुल्म करते हैं ना, खुद भी तो हम इस चीज को बर्बाद करते हैं। मुसलमान के माल, माल के अंदर भी क्या चीज आ जाती है?
किसी का माल गलत तरीके से हजम कर देना, उसको धोखा दे देना, माल हड़प कर लेना, फजूल खर्ची करना खुद से, ये भी तो शैतान के भाई फजूल खर्ची करते हैं। और धोखाधड़ी, फिर विरासत। विरासत के मामले में वो तो दोहरी चीज हो जाती है ना। विरासत का इटसेल्फ जो है कितनी वो बड़ी चीज है कि अगर कोई गलत वो करे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करे तो उसका गुनाह है। लेकिन अगर उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी देखा जाए कि उस माल के ऊपर किसी ने हाथ अपने हाथ साफ कर लिया है, तो वो तो दोहरा गुनाह हो गया ना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको हम किसी खाते में नहीं लाते, वो है मुसलमान की इज्जत। हम में से हर एक इस चीज का गवाह है कि ये रिश्तेदारियों में हम कितनी इज्जत करते हैं या नहीं करते। खसूसी तौर के ऊपर जो शहर के रिश्ते होते हैं, यानी जो ससुराली रिश्ते होते हैं, हर घर की कहानी है। हर घर के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, जुल्म की हद तक हो रहा होता है। हम बाज दफा अ, यानी कि अगर आप इसको इस चीज से रिलेट करें ना, कि इज्जत माल और जान की पामाली का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या कि अगर आपने ये इन चीजों को पामाल किया, तो आपने उनका शिकार किया, यानी आपने हंटिंग की है ना। क्योंकि या तो आपके हाथ उस तक पहुंच सकते थे। हाथ का मतलब क्या है कि आपकी वो जिसे कहते हैं ना कि आपके काबू में है। कुछ लोग आपके जेरे दस्त होते हैं। कुछ लोग मतलब फाइनेंशियली तौर के ऊपर या अपनी उम्र में छोटे होने की वजह से या रिश्ते में छोटे होने की वजह से आपके जेरे दस्त होते हैं। और वहां उन तक आपके हाथ पहुंच जाते हैं, यानी कि आप उनके ऊपर हाथ जो है वो उससे भी उनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी तरह क्या होता है कि आप उनकी क्योंकि इस हाथ का मानी में ये भी आता है ना कि आपने उनके फाइनेंसेस या आपने उनकी वो जो चीज़ है वो कंट्रोल की हुई है, तो आप उसको भी उसके ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसको भी खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो जिस तरह यहूद ने अल्लाह ताला के ऊपर नाउजुबिल्ला जो इल्ज़ाम लगाया था कि अल्लाह ताला नाउजुबिल्ला तंग दस्त है, तो वो एक मुहावरतन एक ही चीज़ यूज़ होती है ना। तो ये दो मानों में इस तरह आ सकता है कि एक तो फिजिकली हाथ से शिकार, हाथ का शिकार ये है कि मारना, नुकसान, फिजिकली तकलीफ पहुंचाना, और दूसरा ये कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उनको तंग करना। और फिर एक दूसरी जो चीज है, दूसरी तो जो शिकार है वो क्या है? जुबान से निकले हुए अल्फाज, जो कि नेज़े और तीर की तरह लगते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा लगते हैं, जो दूसरों की इज्जतों का शिकार करते हैं, दूसरों के जज्बात का शिकार करते हैं। क्या हम गवाह नहीं हैं इन चीजों के? हम में से अगर मैं आपसे कहूँ, आप सबसे कहूँ बारी बारी, तो आप सबके पास कोई ना कोई कहानी होगी, चाहे अपनी ही हो चाहे किसी और की हो, कि हम इन चीजों को देखते भी हैं, भुगतते भी हैं, हमारे सामने भी हो रही होती हैं, और हम इन चीजों की परवाह भी नहीं करते। हमारे लिए ये चीजें अहमियत की हामिल ही नहीं होती। तो यानी कि हमें इन चीजों का हमें वो उस हुर्मत का ख्याल नहीं आता जब हम उसकी पामाली कर रहे होते हैं, जिस चीज की हुर्मत को अल्लाह ताला ने काबे की हुर्मत से भी ज्यादा करार दिया। क्या हमने कभी इसको जाना है कि जो दिल हम दुखा जाते हैं, तो क्या क्या कर जाते हैं हम? सिर्फ एक इंसान नहीं, हम नस्लों की नस्लें खराब कर देते हैं, हम माशरे का माशरा बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। कहीं पर वो हमें हमारी जुल्म के बावजूद, या हम ताकत भी रखते हैं उसके बावजूद भी हमें जो कमजोर होते हैं उनको हमारे जेर दस्त दे देता है। इसलिए नहीं कि हम उनके ऊपर अपनी ताकत आजमा लें। तो हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, उन रिश्तों का जिन रिश्तों में खसूसी तौर के ऊपर जहाँ पर हमारे हाथ भी पहुँच सके और हमारे नेज़े भी पहुँच सके, ताकि हम उनके
پامالی کا، ان کی عزتوں کی، ان کی جانوں کی اور ان کے مالوں کی پامالی کو کا ہم شکار نہ کریں، ہم ان کو اپنی طرف سے جو زخم پہنچاتے ہیں اس سے محفوظ رکھیں۔ تو میری بات جو تھی یہ والی، آج کا ٹاپک جو تھا یہاں تک ہی تھا۔ آپ میں سے اگر کوئی کوئی بات کرنا چاہے یا کوئی چیز شیئر کرنا چاہے اس حوالے سے تو وہ ضرور کرے۔ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں، یا کسی نے کوئی میسج کرنا ہے تو مجھے کوئی ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ پورے 2 بجے آ، آپ کا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔